Hello students, this is part 1 of polynomial. Okay, in this chapter we will study first introduction, second polynomial in one variable, after this zeros of polynomial, and then remainder theorem, after this factorization of polynomials, and last algebraic identities. Okay, then first of all we learn about introduction. What is polynomial? We already know that what is polynomial in class 8. What is polynomial? An algebraic expression in which variables power is what? Non-negative integers is called polynomial. And what is algebraic expression? You know very well what is algebraic expression. Combination of variable and constant with mathematical operation is called algebraic expression. Okay, that is algebraic expression. Okay, this is algebraic expression. Example, 5 plus x. Okay, that is constant, this is variable, and this is what? Mathematical operation. You know that mathematical operation, plus, minus, into, and divide. Okay, after this we see some more example. X minus 3, this is also a polynomial. This is variable, this is constant, and this is what? Mathematical operation. Okay, 5z, that is also a polynomial, because here what? This is variable, this is constant, and we are not looking what? Mathematical operation, but we know that it can be written as 5 into z. Now we have what? Variable, constant, and mathematical operation. Okay, that is algebraic expression. After this, x by 3, that is also an algebraic expression, because it can be written as x divided 3. Okay, after this 5x to the 5 by x plus 3, that is also an algebraic expression, because here what? Variable, it can be written as 5 divided x plus 3. This is the mathematical operation, where this is constant and this is what? Variable. Okay, after this we know that what is polynomial. Then what is polynomial? We know an algebraic expression in which variables power is whole number, that is what? Polynomial. Okay, an algebraic expression in which listen carefully, that an algebraic expression in which variables power, okay, variables, okay, variable or variables, okay, variables power is whole number, we can say that, or many books write as non-negative integers. Okay, non-negative integers. नॉन-नेगेटिव इंटीजर्स हम लोग समझ रहे हैं. व्हाट इज नॉन नेगेटिव इंटीजर्स? नेगेटिव इंटीजर्स को छोड़ करके बाकी सब, जैसे 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 इनफाइनाइट, इसमें जीरो को भी ऐड करेंगे, बिकॉज जीरो इज नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव. ओके, देन जीरो इज ऑल्सो कम इन दिस okay set, and we know that 0 to infinite is what? Whole number. Then what we can say that definition of polynomial, that an algebraic expression in which variables power is whole number, that is what? Polynomial. Then we can say that in algebraic expression, first example, that is what? Polynomial, because its variable power is what? Whole number. Okay, then it is polynomial. After this, second example, that is also a polynomial, because variables power here, variables power is what? 1, and 1 is whole number or non-negative integer, so it is a polynomial. After this, 5 into z, that is 5 into z. Next example, 5 into z, that is also a polynomial. Okay, here variables power is what? Whole number. Next example, x divided 3, that is also a polynomial. Last example, what? 5x plus 3,
that is polynomial or not. Okay, we see that here it can be written as x to the power minus 1 plus 3. Okay, and we know that what variables power is non-negative integers. Okay, and here it is not, it is what, negative integer, so it is not polynomial. Okay, after this we see another example that x to the power 5 by 2 plus 3. Is this polynomial? No. Why? Because that is what, not a whole number. Okay, we can say that easily, it is not a whole number. इसको आसानी से क्या whole number नहीं है, ये क्या हो जाएगा, polynomial नहीं है. आफ्टर दिस दूसरा एक एग्जांपल देखते हैं, रूट एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x क्यूब प्लस 2. ठीक है, ये क्या पोलिनोमियल है? नहीं है. वाई? बिकॉज हियर व्हाट, x टू द पावर इज 1 by 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x क्यूब प्लस 2. ओके, वेरिएबल्स पावर. ओके, वेरिएबल और वेरिएबल्स पावर. ठीक है, जितना भी वेरिएबल हमको दिख रहा है इसमें, ठीक है, सभी का पावर क्या होना चाहिए कि नॉन निगेटिव इंटीजर्स होना चाहिए, तभी होगा, अदरवाइज ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा. देखते हैं यहाँ पे दिख रहा है ना क्या, कि ये हमारा नॉन निगेटिव सॉरी होल नंबर नहीं है. सब इजिली ये होल नंबर नहीं है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे कि पॉलिनोमियल नहीं है. ठीक है, और एक दो एग्जांपल देखते हैं. जैसे क्या कि 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3x क्यूब बाई x. ठीक है, ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है? तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 5x प्लस 3x क्यूब इंटू एक्स टू द पावर माइनस 1. तो यहाँ पे बोल सकते हैं क्या कि पॉलिनोमियल नहीं है? नहीं, अभी तो नहीं बोल सकते हैं, बिकॉज हियर हमारे पास एक क्या क्लास 8 में रूल था कि अगर बेस इक्वल हो तो क्या करेंगे, पावर को हम लोग माइनस करेंगे, या फर्स्ट चैप्टर में अभी जस्ट रीड किए हैं. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बेस सेम है तो पावर को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो कितना आ जाएगा 2. अब देखते हैं क्या ये पॉलिनोमियल है. यस, इट इज व्हाट, पॉलिनोमियल. ओके, तो इस तरह करके हम जितना भी एग्जांपल है उसको हम लोग देख सकते हैं. आफ्टर दिस अब एक और एग्जांपल देखते हैं क्या, कि 5. ठीक है, 5 पॉलिनोमियल है कि नहीं है? तो है कि नहीं है, तो यहाँ पे देख रहे हैं क्या कि वेरिएबल तो है नहीं. ठीक है, हम क्या पढ़े हैं कि वेरिएबल का पावर जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए. एंड हियर क्या, इसमें वेरिएबल है ही नहीं. ठीक है, तब क्या कहेंगे, इसको पॉलिनोमियल कहेंगे? नहीं कहेंगे, नो, ये पॉलिनोमियल है. ठीक है, एक स्पेशल टाइप का पॉलिनोमियल है. ठीक है, देखते हैं इसको कैसे है. 5 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 1. ओके, 5 इज इक्वल टू 5 इंटू 1, कोई प्रॉब्लम नहीं. 5 इंटू एक्स टू द पावर 0 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना. 1 किसी चीज का भी पावर 0. ठीक है, एक्सपेक्ट टू 0, 0 को छोड़ करके बाकी किसी भी चीज का पावर 0, उसका वैल्यू 1. ठीक है, 5 इंटू एक्स टू द पावर 0. अब देखते हैं क्या डिफिनीशन सही है कि नहीं है. तो क्या बोलता है कि वेरिएबल्स पावर इज व्हाट, होल नंबर. ठीक है, वेरिएबल का पावर क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए. तो क्या ये पॉलिनोमियल है? यस, इट इज पॉलिनोमियल, बिकॉज x टू द पावर 0 इज व्हाट, होल नंबर. ठीक है, तो ये हमारा पॉलिनोमियल है. समझ में आ रहा है सबको? अब हम देखते हैं क्या, ये एक स्पेशल टाइप का है जिसको हम लोग आगे पढ़ेंगे कि ये किस टाइप का पॉलिनोमियल है. 0 के बारे में क्या कर सकते हैं, है कि नहीं है? एक बिल्कुल है, इसी तरह होगा. 0 को 0 इंटू 1 एंड 0 इंटू वाई टू द पावर 0, ऐसे भी लिख सकते हैं. ठीक है, तो ये भी क्या है, हमारे पास पॉलिनोमियल है. ठीक है, तो ये समझ में आया. इसके बाद से कुछ इसका टर्म है. ठीक है, तो टर्म क्या है उसको हम लोग देखते हैं. जैसे क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल. ठीक है ना, कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल. ठीक है ना, कोफिशिएंट क्या होता है? तो कोफिशिएंट क्या होता है कि मल्टीपल नंबर. कोफिशिएंट क्या होता है कि मल्टीपल नंबर. ठीक है ना, मल्टीपल नंबर इज कॉल्ड व्हाट, कोफिशिएंट. ठीक है ना, जैसे क्या 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2. ठीक है, इस पॉलिनोमियल में बोले व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x. ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ x
क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 3। ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं, प्रॉब्लम है ना। यहाँ पे इसी को हम लोग थोड़ा सा एक और एग्जांपल करते हैं, x⁵ अब देखते हैं क्या कि यहाँ पूछते हैं क्या, कोफिशिएंट ऑफ x⁵। ठीक है, यहाँ पे 7 लिख लेते हैं। ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ x⁵ कितना हो जाएगा, तो 7 करेक्ट है, नहीं ठीक है ना, बिकॉज यहाँ पे क्या है, साइन को भी ध्यान देंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा -7। तो ये क्या हो गया आपका कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं क्या कि टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल। ओके, आफ्टर दिस क्या करेंगे हम लोग, टर्म्स देख। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्या टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या है। तो टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या है कि किसी भी अलजेब्रा में, ठीक है ना, कि कोई एक आइदर सिंगल नंबर या फिर वेरिएबल, ठीक है ना, या फिर नंबर एंड वेरिएबल्स, ठीक है ना, कोई सिंगल हमारे पास क्या हो जाए, सिंगल नंबर, ठीक है, या फिर सिंगल वेरिएबल, ठीक है ना, सिंगल वेरिएबल, या फिर क्या कि कोई हमारे पास मल्टीपल, ठीक है, मल्टीपल नंबर विद वेरिएबल, ठीक है, इसको भी हम क्या कहेंगे कि टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल कहेंगे। ठीक है, एग्जांपल में देखते हैं जैसे क्या 5x + 3y + 2। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं क्या कि टर्म्स क्या बोल रहे हैं कि या तो कोई सिंगल नंबर हो, ठीक है, आइदर, ओके, आइदर सिंगल नंबर और सिंगल वेरिएबल और मल्टीपल नंबर विद वेरिएबल। ठीक है, कोई नंबर विद वेरिएबल हो उसको हम क्या कहेंगे, तो टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल कहेंगे। जैसे ये हमारे पास ये दोनों क्या हो जाएगा, एक टर्म होगा, जैसे 5 × x होगा ना, ये क्या है, कोई मल्टीपल नंबर है विद वेरिएबल, ये भी क्या हो जाएगा, एक टर्म्स हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा, एक अलग टर्म्स हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कितना टर्म है, तो 3 टर्म्स है। ओके, एक चीज और क्या कि टर्म्स, ठीक है ना, टर्म्स विल बी सेपरेटेड, ठीक है, सेपरेटेड विद प्लस और माइनस साइन। ठीक है, किस किस साइन से, प्लस या फिर माइनस साइन से क्या होता है कि टर्म्स जो होता है सेपरेट होता है। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लाई में दिया है तो वो हमारे पास क्या होगा, वो सेपरेट नहीं होगा। ठीक है ना, जैसे यहाँ 5 × x, तो ये हमारे पास क्या है, ये 5 × x, इसको एक अलग और इसको एक अलग टर्म नहीं लेंगे। ठीक है ना, ये दोनों मिल करके एक सिंगल टर्म होगा। ठीक है, जैसे बोल रहे हैं ना यहाँ पे क्या, सिंगल नंबर, सिंगल वेरिएबल एंड मल्टीपल नंबर विद वेरिएबल, तो यही मल्टीपल नंबर विद वेरिएबल यहाँ है, तो ये क्या हो गया, सिंगल टर्म, फिर ये क्या हो गया, एक सिंगल टर्म, और ये एक सिंगल टर्म, तो ये टोटल मिला के कितना हुआ आपका, तो 3 टर्म होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। जैसे एग्जांपल में एक और देखते हैं, 3 - x/4। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, 3 - 1/4 × x लिख सकते हैं। देखते हैं यहाँ पे क्या बोल रहा है, सिंगल नंबर या फिर सिंगल वेरिएबल, और या फिर क्या मल्टीपल नंबर विद वेरिएबल, तो यहाँ पे कितना टर्म हो गया, तो 2 टर्म हो गया। ठीक है, ओके, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। प्रॉब्लम टर्म्स जो है ओनली देख लेंगे क्या माइनस और प्लस है, बस वहीं से सेपरेट कर देंगे। आफ्टर दिस एक दो और जब एग्जांपल देते हैं उसको थोड़ा सा ध्यान देंगे। 3x + 5x² + 6x + 2y। ओके, इन दिस हमारे पास कितना टर्म है, ओके, यहाँ पे एक माइनस का साइन ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कितना टर्म है हमारे पास, 1 2 3 4 टर्म है। ओके, बट नो, दैट इज रॉन्ग। ओके, कैसे, यहाँ देखिए 3x एंड 3x, दीज आर लाइक टर्म। ओके, तो ये लाइक टर्म है तो हम इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9x + 5x² - 2y। अब देखते हैं कितना टर्म हुआ, अब तो कोई हमारे पास लाइक टर्म है नहीं, तो ये कितना टर्म हो गया आपका, तो 3 टर्म्स हो गया। ओके, समझ में आ रहा है सबको। ठीक है, अब देखते हैं आगे, नेक्स्ट एक और एग्जांपल, 5x² + 3x + 2 + 1/x। क्या ये कितना टर्म है इसमें, चलिए यहाँ एक माइनस ले लेते हैं, यहाँ भी माइनस ले लेते हैं। ठीक है, तो अब इसमें काउंट करते हैं टर्म, 1 2 3 4 टर्म कितना है, 4 टर्म है इन दिस पॉलिनोमियल।
राइट है? नो, दैट इज ऑल्सो नॉट राइट बिकॉज इट इज नॉट पॉलिनोमियल। ओके, ध्यान देंगे ये पॉलिनोमियल हमारा नहीं है। यहाँ पे क्या आ जाएगा x टू द पावर माइनस 1, ठीक है? तो ये हमारे पास क्या है, ये पॉलिनोमियल है ही नहीं, ठीक है? इसलिए हम इसके टर्म के बारे में नहीं कहेंगे। अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में बोलता, ठीक है, तब हम बोल सकते थे क्या कि इसमें कितना टर्म है, 1 2 3 4 टर्म है, ठीक है? बट यहाँ पे कितना है हमारे पास, ये पॉलिनोमियल नहीं है, देन वी कैन नॉट से अबाउट एनी टर्म। ओके, आफ्टर दिस डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है? इसके बाद क्या है हमारा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, ठीक है? तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है कि हाईएस्ट पावर, ठीक है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बोलेंगे। ओके, किसी भी पॉलिनोमियल में अगर जो हाईएस्ट डिग्री है वो हमारे क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल का डिग्री हो जाएगा। जैसे क्या इस पॉलिनोमियल में देखते हैं, इस पॉलिनोमियल में हाईएस्ट डिग्री कितना, तो 2, सॉरी हाईएस्ट पावर कितना 2, तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा आपका, तो 2। इसमें आते हैं, इसमें हाईएस्ट पावर कितना हो गया, तो 1 हो गया, तो इसका जो हमारे पास डिग्री होगा वो कितना हो जाएगा आपका, तो डिग्री इज इक्वल टू 1। ओके, समझ में आ रहा है? एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे क्या 3xy प्लस 5x प्लस 2, ठीक है? इसमें देखते हैं डिग्री कितना है, यहाँ 1 1 1, ठीक है? तो डिग्री कितना होगा 1। ओके, नो, दैट इज नॉट राइट, ठीक है? ध्यान देंगे, अगर कोई भी पॉलिनोमियल अगर हमारे पास कुछ डिफरेंट वेरिएबल में है, ठीक है, और डिफरेंट वेरिएबल में मल्टीपल में है, तो हम उसके दोनों पावर को ऐड करेंगे। जैसे ये 1 और 1 कितना हो गया 2, देन इट्स डिग्री इज व्हाट 2। आफ्टर दिस एक और एग्जांपल इसी टाइप का, 5x स्क्वायर y प्लस 3x क्यूब प्लस 2, ठीक है? अब देखते हैं इस पॉलिनोमियल में डिग्री कितना है। तो इस पॉलिनोमियल में डिग्री कितना है, इजिली वी कैन से दैट व्हाट डिग्री इज इक्वल टू 5 बिकॉज हियर इट इज 2 एंड दिस इज 3, देन व्हेन वी ऐड वी गेट व्हाट 5, सो द डिग्री इज व्हाट 5। तो सबको समझ में आया कितना है डिग्री? डिग्री सबको बारे में समझ में आ रहा है ना, डिग्री इजिली। आफ्टर दिस एक और एक एग्जांपल देखते हैं और इसमें हम लोग डिग्री बताएंगे। x टू द पावर 5 प्लस 3x प्लस इंटू 3x क्यूब प्लस इंटू x प्लस 5, डिग्री कितना है? तो डिग्री हमारे पास कितना है, ये पहले इसको देख लेते हैं क्या पॉलिनोमियल है। यहाँ से ये हमारे पास चला जाएगा क्या, x क्यूब इंटू एक्स टू द पावर माइनस 1 प्लस 5 एक्स क्यूब टू द पावर 5 और 3x प्लस 2, ठीक है? आप बोल सकते हैं क्या कि पॉलिनोमियल का डिग्री कितना है, 5 है। यही अगर इस तरह क्वेश्चन पूछता, ठीक है, तब क्या होता, तो डिग्री हमारे पास इसका नहीं बताते, ठीक है? क्योंकि क्या ये पॉलिनोमियल है ही नहीं, बिकॉज इट कैन बी रिटन एज व्हाट x टू द पावर माइनस 1, सो इट इज नॉट पॉलिनोमियल। देन पॉलिनोमियल नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, फिर इसका हम लोग डिग्री भी नहीं बता सकते हैं, ठीक है? तो ये समझ में आ रहा है सबको? अब इसके बाद से कुछ इसका टाइप है, पॉलिनोमियल का टाइप है, तो उस पॉलिनोमियल के टाइप को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं। ओके, आई होप यू लर्न वेरी इजिली। थैंक यू फॉर अटेंडिंग द क्लास।